poor, but we were hailing from a very lower middle class background. I used to stay first 20 years, 19 years of my life. I was born and brought up in one room kitchen. That has been my background. I'll come to that particular part later on. But I had no other choice but to become successful. I asked my brother and my mummy at that time, give me 2 years. We had no money absolutely. And my brother was earning 2,500 rupees per month. I still remember distinctly that amount. And it was a financial blow, emotional blow on our family. That is the demise, sad demise of my father. I could have cried and I could have given reason of my father. That is something which is an unfortunate part of our life, to see our parents no more with us and their memories only would remain with us forever. So that could have been a nice reason I would have given to myself. Only 4 months left for the exams. My brother used to go for job and my mummy and my elder sister both used to cry at home. I used to leave them with a heavy heart at home. 7 a.m. I used to report to library and I used to study from 7 a.m. to 1 a.m. on a daily basis consistently. While going out of library, my friends used to ask me, आज कितना पढ़ाई हो गया? I used to proudly say 100 pages. वो गिर जाते थे 100 pages सुनने के बाद. I used to say एकदम सिंपल है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, एक पेज पढ़ने को 5 मिनट काफी है. On an average, I read 12 pages per hour, duly underlined. उसमें साइड में कुछ लिखने का होगा मार्जिन्स में, वो सब कुछ किया संस्करण उसके ऊपर. एंड इफ आई एम रिलेंटलेसली कंटिन्यूसली, मेरे गुरुदेव ने जिन्होंने ये ओम नमः शिवाय दिया उन्होंने ही रिलेंटलेसली ये वर्ड सिखाया मुझे, कंटिन्यूस एफर्ट. मोदी इन अमेरिका सेड वन वर्ड, आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स ऑल्सो, ऐसा उन्होंने कहा. तो वैसे मुझे ऐसे लगता है इस एकेडमी के लिए, as soon as that academy started off, I hardly took any break. एक बैच खत्म होता है, दूसरा आ जाता है. No regrets. I enjoy your company. So yesterday was the last lecture of one of the batches and today is the first lecture of next batch. Welcome. Relentless efforts. ये होना चाहिए अपने जिंदगी में. Then we can achieve wonders. So from the background which I said to you, I had no other option but to pass out the exams. घर पे बोला गया था, मतलब मैंने कहा था उनको, give me 2 years. उसके बाद मेरा जब पहला जॉब होगा तो मैं 1 लाख रुपए एनुअली कमाऊंगा. तब 1 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज है, शायद आज 10 लाख रुपए होगा इक्वल टू. मैंने उनको कहा कॉन्फिडेंटली, आई विल अर्न 1 लाख रुपीज पर एनम, बिकॉज दैट वाज अ नेसेसिटी एट दैट टाइम. 1 लाख डिवाइडेड बाय 12. मेरे पहले इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यूअर डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था. उन्होंने मुझे पूछा 1 लाख ही क्यों, 50,000 क्यों नहीं? मैंने कहा आई हैव गिवन माय वर्ड, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव दैट जॉब, नो प्रॉब्लम. आई वाज ओनली 23 years old एट दैट टाइम. वो बच्चा भी इतना बोलता है, ऐसा हो गया वो. But I had that conviction. He offered me that 1 lakh rupees package, which I wanted at that time. Once again, whatever we conceive, we achieve. Whatever we sow, we reap. Over a period of time, I have realized one thing, that our mindset should always remain positive or neutral, but never negative. Why? As soon as I think negatively about A, B, C, D, whoever, उनका बुरा होना हो, मेरा होने ही वाला है. So that is the most selfish thought which I have generated in my mind, that remain positive ever. Probably that is what is professionalism all about. Think about all the legends, Sachin Tendulkar, Lata Mangeshkar, Amitabh Bachchan, whoever are the legends. Zakir Hussain को मैंने बहुत बार लाइव कॉन्सर्ट्स में देखा है. कोई भी सीनियर आया ना, दे बाउ डाउन, आशीर्वाद ले ही लेते हैं. अगर मैं आशीर्वाद किसी का लेता हूं
उसके दिल में अगर नफरत भी है, लेकिन आशीर्वाद देते समय 2 सेकंड के लिए तो वो अच्छा सोचेगा मेरे बारे में. So we can convert others' negative mind into positive. लोग हंसते ही नहीं. दूसरा एक ऑब्जर्व किया मैंने आज तक, हस्बैंड वाइफ खाना खाने के लिए बैठे, दोनों अपना मोबाइल देख रहे ऑर्डर. यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? कीप अवे दो सेल फोन्स. ऐसा दिन में 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा मतलब नक्की करो. हम लोग मैं तो घर पे भी साइलेंट पे ही रखता हूँ उसको. आ गया फोन देखा जाएगा. हम डॉक्टर नहीं है कि कोई मरीज है और वो मर रहा है. यहाँ पे मरेगा मतलब क्या, 6 महीने के लिए मरेगा अपने इंडस्ट्री में. समझ में आया ना? मरने नहीं देते हैं यहाँ पे भी, हम लोग ट्राई करते हैं, बट दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाती. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन क्लियर टर्म. थोड़ा सा समय खुद के डेवलपमेंट के लिए. खुद को मतलब लोगों को लगता है 2 घंटा और सो, खुद को टाइम मतलब. अरे खुद को समय दो, मतलब खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचो. आप थोड़े सीनियर हो, इसके लिए आपके आपके साथ लाइव ज्यादा डिस्कस करता हूं. हाँ मैं, और पहले ही लेक्चर में, बाद में हमारा लाइव एक ही है. हाँ? मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डायरेक्ट टैक्स, ये मेरा लाइफ है आपके साथ बस. लोग हंसते ही नहीं. मैं कहता हूँ रिलैक्स होके जितना आप ज्यादा समझ सकते हो ना, हंसी मजाक में जितना ज्यादा समझ सकते हो ना, उतना प्रेशर में नहीं समझेंगे. मैं एक स्टूडेंट को बोला, अरे हंस. क्यों हंसू? मैं, क्या प्रॉब्लम है तेरे जिंदगी में भाई? जिंदगी के प्रॉब्लम से याद आया, सिंधुताई सकपाळ, आपको मालूम होगा मराठी लोगों को, समाज काम करती है वगैरह वगैरह. एग्जाम्पल पहले दिया होगा और आपने सुना होगा तो माफ करो, कुछ लोग पहले से मुझे जानते हैं. वो ऐसे ही पूछते थे क्या कि किन किन लोगों को प्रॉब्लम है. ऑडिटोरियम में ऐसे 80% हाथ ऊपर आते थे. आपको लगता है मुझे प्रॉब्लम है, आपको लगता है, वो सब लोग हाथ ऊपर करते थे. 80% से भी ज्यादा, शायद 80% लोग हाथ ऊपर करते हैं. किसी को मालूम है ये किस्सा जो मैं कह रहा हूँ? साहेब काय नाव आपलं? माणिक, तुझं नाव माहिती आहे रे मला. श्री कृष्ण. श्री कृष्ण है अभी भी. हाँ, आप यहाँ पे आके कुछ एड्रेस करो इनको. अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो मेरा कान पकड़ लो आप, समझेंगे नहीं. श्री कृष्ण जी है वो, हम अर्जुन भी नहीं है. ऐसा है, ठीक है. आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हर. तो ऐसा पूरे ऑडिटोरियम भरा हुआ है. यू कैन इमेजिन 1000 पीपल सिटिंग, 800 पीपल रेजिंग देयर हैंड. किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा नहीं होता, किसी की बीवी उसके साथ नहीं, किसी दूसरे की बीवी मेरे साथ है. मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी देयर. आई एम इमेजिनिंग एग्जाम्पल गिवन. उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए, जो हमारे हिंदू धर्म में आपको मालूम होगा, जो कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी के ऊपर हम लोग ऐसे पिंड रखते हैं, मतलब राइस का ऐसा, मतलब राइस रखते हैं ऐसे 1 2 ऐसा अलग अलग जगह. और कहते हैं हम लोग वो खा के जिंदा रहे. सिंधुताई सपा हैड टू ईट दैट. जो डेड बॉडी के ऊपर जो राइस है वो खा के जिंदा रहे. क्या आपके प्रॉब्लम इससे भी बढ़िया है? अभी हाथ ऊपर करो. Then the answer is no. So no problem is bigger than you, your life. Your life is much more precious than those small obstacles. Obstacles नहीं आएंगे तो जिंदगी का मजा क्या है बोलो? आपको मैं स्वीट डिश, मतलब 3 या 4 स्वीट डिश, श्रीखंड, पूरनपोली और 3 4 ऐसे स्वीट डिश इकट्ठा खा के, लेकिन गोड़ शीरा, करंजी, आई विल गिव यू 4 और 5 स्वीट डिशेस. आप कितनी देर खाएंगे? नहीं खा पाएंगे. समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा स्वाद चाहिए जिंदगी का. यू हैव टू फाइट. अगर फाइट नहीं करके पैसा मिला तो पंजाब में आज जो होता है वो हो गया इजी मनी, फिर ड्रग्स, दारू, अय्याशी, क्योंकि पैसा इजीली आया. आई हैव सोल्ड माई 2 एकर्स टू गवर्नमेंट, आई हैव अर्न 4 करोड़. 4 करोड़ का क्या करें? उड़ाओ. ये इजी मनी हो गया. सो देयर इज नो वैल्यू विच इज अटैच्ड. आज आप जब खुद कमाओगे, प्रोफेशनल बनोगे,
यू विल फाइंड योर सेल्फ, लेकिन यू टर्न इंसान की जिंदगी में आता है। और एक छोटे से स्टूडेंट का एग्जाम्पल देखो, मेरी जिंदगी में ना एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी जिंदगी में आप लोग हो। मैं थ्रू आउट इंडिया आजकल घूमता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को कुछ मालूम होगा कि मैं नागपुर गया, इंदौर गया, बेंगलोर गया, चेन्नई गया, अभी गुवाहाटी जाऊंगा, जहां जहां जाता हूँ स्टूडेंट से मिलता हूँ, एंड आई एनरिच माई सेल्फ बाय देयर एग्जाम्पल्स, देयर एक्सपीरियंस। एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ, यू टर्न कैसे हो सकता है जिंदगी। ये जैसे फूल बेचने वाले लोग हैं ना, वैसे रास्ते के किनारे बेचारी ऐसे छोटा छोटा ये करके फूल बेचती थी। फिर किसी ने कहा कि ये करो करके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते थे तो सीएस करने के लिए अपने पास आ गए। आज वो बच्ची जो है वो प्रोफेशनल बन गई, सीएस बन गई। शी अर्न्स 60,000 और 70,000 पर मंथ। देखो जिंदगी में कितना बदलाव आ गया। आई हैव गॉट सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस सॉर्ट वेयर इट इज अ कंप्लीट यू टर्न। और एक इंसान बदलता है ना तो पूरी फैमिली बदल जाती है उसकी। द एंटायर फैमिली चेंजेस अराउंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। So I think it is a responsibility on all of us to become professional, and we give our 100%. मेरे शर्मा जी करके प्रेसिडेंट मतलब बॉस थे मेरे, वो कहते थे कि सामने विनय दीवार है और तेरे पास कोई औजार नहीं है तो हाथ से मार, खून आएगा लेकिन मारते रहे, रुकना नहीं। That's what I was saying. Consistent, relentless efforts. ये सब पैशन रखो दिमाग। 92 के वर्ल्ड कप की स्टोरी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, बारिश आई, उसकी वजह से वो डकवर्थ लुइस सिस्टम की वजह से 1 रन से पाकिस्तान जीता। उसके बाद हर एक फेज में जीतते गए, अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। इमरान खान was the captain of that team, who is now a politician. He was asked this question while lifting that cup, that trophy. What was that? He said, it was a haunting. Haunting समझते हैं ना आप लोग? It was my passion. ये करना ही था। वो 2 ही लोग थे, वो और मियांदार। वो दोनों लोग कंसिस्टेंटली खेलते गए, बाकी कोई खेला नहीं उधर में, कभी कभी इंजमाम खेला वगैरह। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि इट वाज हॉन्टिंग, कि ये जैसा भूत हमारे सर पे बैठता है वैसा एक सर पे बैठना चाहिए ये भूत, कि जब तक मैं प्रोफेशनल नहीं बनूंगा तब तक मेरे बाकी सारे काम, मेरे सारी एंजॉयमेंट लाइफ की मैं पोस्टपोन करूं। जब ये होता है तो आपने खुद के ऊपर कंट्रोल पा लिया। आप कब तक कंट्रोल पाओगे मालूम है? यहां से स्टेशन जाने तक। उसके बाद आपका रूटीन का जिंदगी शुरू हो जाए। विनय भागवत ने कुछ अच्छा कहा था, ये अच्छा कहा था, बस इतना ही याद है, क्या कहा था वो भूल जाते हैं। स्टेशन जाने तक ही इसका इंप्रेशन रहेगा। आई वॉन्ट दैट इंप्रेशन टू बी देयर फॉर द लाइफ टाइम। कहीं भी हो, किसी भी इंडस्ट्री में भी हो, आपको आज चीफ मिनिस्टर बना वो बंदा 44 ईयर्स के एज में, क्या वो सुकून की मतलब क्या अभी वो अय्याशी करेगा, एंजॉय करेगा? तो आंसर इज नो। You have been given a bigger responsibility. You have been given a bigger platform to prove yourself. तो ये स्टेज है, छोटा स्टेज, छोटे से बड़ा स्टेज, स्कूल एक स्टेज होता है। 10th के एग्जाम आपको लगता है क्या अभी डिफिकल्ट है, या 12th के एग्जाम आपको लगता है डिफिकल्ट है? द आंसर इज नो। लेकिन जब आप 10th और 12th में थे तब हाँ, आपको ऐसा लगता था कि यही मेरी जिंदगी है, इसमें 2% कम आया तो अरे फैमिली की इज्जत। और फिर टेलीविजन बंद, केबल का कनेक्शन निकाल दो, कुछ लोग टेलीविजन उल्टा करके रख देते हैं साल भर। नॉट द एंटायर फैमिली इज ऑब्सेस्ड। ये जो ऑब्सेशन है, हॉन्टिंग है, वो ऑब्सेशन आना चाहिए, पागलपन, मैडनेस। वो मैडनेस जब तक नहीं आता तब तक ये ऊपर ही ऊपर की जिंदगी। आई यूज्ड टू बी वेरी हार्श इन माई लैंग्वेज। मुझे ऐसे सहन नहीं होता था कि यार इसकी ये गलती दिखती है, उसकी वो गलती दिखती है, ऐसे सारी जिंदगी में मुझे ऐसे गलतियां ही गलतियां दिखती थी।
हे भगवान। तो फिर मैंने 2 या 3 साल इंट्रोस्पेक्शन किया, खुद के अंदर जाकर डीप 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 इनसाइड, फिर आपको कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपको लगता है कि हर एक चीज सही है। तो मैं किसी का नाम भी पूछूं उसके बाद मैं वेरी गुड कहता हूं। वी ऑल हैव कम हियर फॉर अ पर्पस माय फ्रेंड। और वो पर्पस क्या है, जब तक हम लोग ऐसे हायर लेवल पे, हायर लेवल मतलब पूरे देश का मत सोचो, पूरे देश में कैसे टॉयलेट बांधेंगे वो मत सोचो आप, दैट इज नॉट योर जॉब। एज ऑन डेट आई वांट टू बी पावर फ्रॉम विद इन। पावरफुल का मतलब क्या है, जब मैं मेरे माइंड को कहूंगा सुबह 6 बजे उठ, तो उठना चाहिए। अभी कैसा, मैं आपके 2 माइंड होते हैं, एक माइंड बोलता है उठ, दूसरा बोलता है गड्ढे में जा। अरे उठ यार, हम लोग खुद से बात कर रहे हैं, ठहर रे 15 मिनट, होता है कि नहीं? ये जो अपना ड्यूअल है, अपने अंदर जो टकराव है, वो होते रहता है। और उसके बियॉन्ड जब हम लोग जाते हैं तो आप एक नई जिंदगी पाते। दैट इज व्हाट इज लाइफ। जहां पे आपको 1-2 ही एग्जांपल्स दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में है। एक है बाबा आमटे, ये मूवी छोड़ दो, मूवी देखा भी नहीं भी होगा तो चलेगा, एक एक्चुअली एक बार उधर जाके आओ, आनंदवन। आनंदवन और ये हेमल कथा थोड़ा सा डिफरेंट है, दूर है, 250 किलोमीटर अंतर है। नागपुर के पास ही है आनंदवन, एक बार जाके तो आओ। पूरा आनंदवन देखने को 7 दिन लगेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट है, और आपको शर्म आएगी। एक एग्जांपल आनंदवन का ही लेता हूं और आपके सामने रखता हूं। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग खुश क्यों रहे, मतलब मैंने जैसे कहा ना कि मैं पहले था ना, सिर्फ ज्ञान, ऐसा कैसा, दिस इज रूल, एज पर रूल ऐसा होना चाहिए। मैं कलावती आई का शिष्य हूं, आई एम डिसाइपल ऑफ कलावती। उधर इनको कहा ना जोर से मत बोलो, क्यों बोलते हैं ऐसे करके, मैं ही जोर से बोलता था। ये गलती हमें बाद में पता चली। व्हाट आर वी लुकिंग एट ओवर हियर इज हाउ डू वी फाइंड कंट्रोल ओवर अवर सेल्फ। इसके लिए आपका सक्सेस जो है ना, किसी को डिवोट करो, मे बी पेरेंट्स, मे बी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आई डोंट माइंड, मे बी अ डेटी, गणपति बप्पा मोरया बोलो, क्राइस्ट को दे दो, जिसको देने का दे दो, लेकिन दे दो किसी को, देने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। सो यू नीड टू बी सक्सेसफुल फॉर समबडी। ये जब तक एसोसिएशन दिमाग में नहीं आएगा कि नहीं, तब तक वो नहीं होता। तो पैशन क्रिएट होना चाहिए, चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। वो चैन की नींद जिस दिन मैंने आपकी हराम कर दी, मैं सफल हो गया। I'll take it as a break. दो एग्जांपल्स देने थे, एक तो बाबा आमटे, उनके बारे में पढ़ो यार, बाकी मतलब उधर जाओ भी मत, पढ़ो सिर्फ। लोगों को लगता है बाबा आमटे मतलब लेप्रोसी वाले पेशेंट। मैं आपको उधर का एक लाइव एग्जांपल दे रहा था। मेरी उम्र की होगी अराउंड 40 साल की, एक ऐसे उधर लड़की, औरत जो थी, एकदम कंटिन्यूस स्माइलिंग। आधा घंटे हम लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। शी यूज्ड टू बी हैविंग अ ब्रॉड स्माइल, एज मच स्माइल एज पॉसिबल। नाम ही आनंदवन है, उधर कोई डेटी नहीं है, उधर कोई भगवान की मूर्त नहीं है, इंसान, इंसान का भगवान बनाया हूं, इन सिंपल। हंसती है, दिन में वो 3 ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती है, वो क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग करके, ऐसे अलग अलग कलर के, मेरे पास फोटोग्राफ है उसके, प्लेन पेपर पे वो स्विमिंग करके ऐसा शुभ दीपावली का वगैरह ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, दिन में 3। बेस्ट पार्ट क्या है, दोनों हाथ नहीं है और डिफॉर्म लेग है, पैर में वो पकड़ के, सुई जो है वो पकड़ के, निडल पकड़ के वो करती है। दिन में 3 ग्रीटिंग कार्ड, आपको हाथ से भी वो नहीं आएंगे, 3 क्या, एक भी नहीं आएगा।
मुझे, आपको मतलब हम सब। फिर भी बेसिस क्या है? आनंद, एंजॉय। आई हैव गॉट हर फोटोग्राफ्स, वीडियो ऑल्सो। उनसे हम लोग क्या सीखते हैं? पैसे। देखो हम लोग मतलब आई मीन वी आर इन मुंबई फाइनेंशियल हब। हम लोग को ऐसे लगता है कि आनंद मतलब पैसा कमा। इस जुनून से थोड़ा सा बाहर आओ, फिर आपको पता चलेगा कि अरे यार, लाइफ इज मच बिगर देन व्हाट वी वर थिंकिंग। बाबा आमटे, मदर टेरेसा, जैसे माँ प्यार करती है कि नहीं, माँ का प्यार है अनकंडीशनल लव। इज देयर एनी कंडीशन पुट बाय मदर कि तू आगे जाके मेरा लाइक नो मेंटेनेंस ठीक से करेगा तो ही मैं तुझे प्यार करूंगी? कौन सी माँ ऐसे कहती है? बाप शायद करेगा शुरू होकर, या हम लोग अपनी माँ की तरफ बोलेंगे टिफिन देगा तो ही अच्छा है माँ, नहीं तो नहीं अच्छी। हम लोग झगड़ा करते हैं। तो ऐसा अनकंडीशनल लव इन दोनों से आपको मिलेगा। मदर टेरेसा ने भी वो किया, बाबा आमटे ने भी। नो कंडीशन अटैच, लाइफ एज इट इज। ऐसे मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं मेरी उम्र के, लाइफ एज इट इज। पैसा इग्नोर। मैं आपको नहीं कह रहा हूं पैसा इग्नोर करो, इट रिक्वायर्स, लेकिन फॉर पीसफुल लाइफ आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को ऐसा डेयरिंग नहीं। आपको और एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूं। हमारे एक स्पिरिचुअल दोस्त है, वो किसी भी डिसाइपल को टेस्ट करने के लिए, एक तो आजकल स्पिरिचुअल लोग नहीं रहे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा वो धंधा हो गया है बाबा लोगों का। मतलब क्या क्या रिडिकुलस चीजें मैंने सुनी और देखी है भाई, लेकिन ये अपना एक सेशन कम पड़ जाएगा। उसमें एक स्पिरिचुअल इंसान है, उसने कहा कि गुरुदेव को रियलाइज करना है। वो स्वामी समर्थ जी को मानते हैं। स्वामी समर्थ जी आपने मराठी लोगों को मालूम होगा, इज अ बिग सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। यहां से मतलब मुंबई से आप जाओ अक्कलकोट, स्वामी समर्थ जी की वहां पे समाधि है। 2 कंडीशन, जेब में पैसा नहीं रखना और किसी से कुछ मांगना नहीं। क्या 2 कंडीशन? जेब में पैसा नहीं रखेंगे और किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, फिर आपको आपका गुरुदेव जो है ना वो रियलाइज होगा बराबर। कहीं ना कहीं किसी रूप में आके आपको मदद करेगा, कोई खाना देगा, कुछ कुछ भी। ये जो चीज है ये सीख। तो उनको मांगने में शर्म आती है। काहे की शर्म? जब तक मैं खुद के लिए नहीं मांग रहा हूं मुझे काहे की शर्म? तो ये छोटी 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 चीजों से हम लोगों को अपना माइंड स्ट्रांग करना है। छोटी सी चीजों के ऊपर से डिस्टर्ब होना छोड़ दो। सबसे पहला बात, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बहुत आसान है बोलना ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, इसके पैर पे मैं पैर रखूं तो तेरी तो गाली आ जाती है मुंह में। आती है कि नहीं? ऐसे अपने आप। वो जो अपने आप गाली आती है मतलब क्या हुआ? वो निगेटिव रिएक्शन हो गई ना। तो मैं आपको संत महात्मा बनने को नहीं कह रहा। आई वॉन्ट यू टू एंजॉय योर ओन लाइफ। नाइट आउट मैं भी करता हूं। सुबह 4 बजे थाना स्टेशन पे आके गरम गरम नाश्ता खाने का और चाय पीने का वो मजा और ही है कुछ। नाइट आउट्स भी करो विदाउट अफेक्टिंग योर नेक्स्ट डे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बैच में मैंने ऐसे बहुत बार करके देखा कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस बार बहुत अच्छे थे, फाइनलिस्ट। कोई कैसियो बजाने वाला मतलब कीबोर्ड बजाने वाला, कोई तबला बजाने वाला, कोई अच्छा सिंगर मिला। तो हम लोगों ने 2 बार ऐसा किया कि नाइट आउट। नाइट आउट मतलब भजन संध्या। संध्या क्या नाइट हो गई, लेकिन दूसरे दिन काम पे थे सुबह 9 बजे 10 बजे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई मीन यू एंजॉय योर लाइफ बट बी डिसिप्लिन्ड विद इट। फॉर द टाइम बिंग डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंजॉयमेंट। इफ यू वांट टू एंजॉय समथिंग, enjoy our company. You don't have any other choice. That is academics. आगे बढ़ते हैं। लैंडलाइन का नंबर है, निरंजन जोशी का नंबर लिखा हुआ है। यानी मतलब फाइनलिस्ट तो मेरे दोस्त बन जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी लोगों को विनय भागवत, विनय.भागवत@siddharthacademy.com
अगर कुछ सजेशन इम्प्रूवमेंट्स वगैरह है तो बहुत सारे इस बार मतलब परसों ही किया है, फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन वीडियोस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको siddharthacademy.com पे मिलेगा। जो आपके दोस्त है जिनको फ्री नोट्स चाहिए, कुछ कुछ मतलब टैक्स, इंटर का टैक्स फॉर एग्जांपल, सारा मैंने सिनॉप्सिस उधर दे दिया। टैक्स में ही पढ़ाता हूँ, इसके लिए मैंने सब कुछ दे दिया उधर जो है वो। तो किसी को टैक्स लास्ट मिनट रिवीजन करना है, जाएगा उधर और ले लेगा, डाउनलोड कर लेगा। नो मोटिव, पैसा कमाने का मोटिव कुछ नहीं है नॉलेज फ्री में बांटो। ऐसा भी हो सकता है, ये इतना कमर्शियल हो गया है आज की जिंदगी। चलो उसके विनय 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 भागवत को पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में क्लास करूँ ना तो मेरा खून कर देंगे लोग, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए मैं वो नहीं कर रहा हूं, मुझे और थोड़ा सा जिंदा रहना है। सो फॉर ऑल दिस, लाइक दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव